Hello students. In the previous lecture, we covered up to the topic what is the mechanism of the opening and the closing of stomata of the chapter life processes. In this chapter, we will discuss about the nutrition in the heterotrophs. We already discussed what is the meaning of a heterotrophic organism. Basically, heterotrophic organisms are those animals which depend upon the other organism for obtaining their food. And we also know that the heterotrophic organism getting their food from the surrounding on the basis of two factors. The first one is the according to the availability of the food, and second is the strategy to obtain the food from the surrounding environment. So according to these criteria, all the heterotrophic organism categorized into the three types. The first one is the herbivore, second carnivore, and the third is the ओमनीवोर. बेसिकली ये जो तीनों वर्ड्स हैं हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, ये लैटिन के वर्ड्स हैं. दीज ऑल थ्री वर्ड्स आर कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, द फ्रंट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट. द फ्रंट पार्ट इज द हर्बी, कार्नी एंड द ओमनी, and the last second part is the vor, which is similar in all three types. बच्चे vor means होता है to eat, and the herby means आपके पास होगा प्लांट, रिप्रेजेंट करता है हर्बा वर्ड प्लांट को. कार्नी वर्ड रिप्रेजेंट हमारा करेगा फ्लैश को, एंड ओमनी रिप्रेजेंट करेगा बोट्स को. ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा. हर्बीवोर्स एनिमल इंक्लूड्स दोज एनिमल्स विच ऑब्टेन देयर nutrition from the plant and the plant products, and in the carnivore animal include those animals which obtain their food from the flesh, and in omnivores animals these are those kind of animals included in this category which obtain their food from the plant products also and the flesh also. But next is that there are the few basic steps that for the obtaining the nutrition in the heterotrophic organism. These are the few steps which are basics or which are similar in all the holozoic animals. So these are the ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. We will discuss in a detail one by one. Okay, so let's start. What is the meaning of ingestion? बेसिकली इंजेशन का अगर हम शॉर्ट वर्ड में मतलब देखें तो क्या होता है. इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ अ फूड. Basically in ingestion it is a process. Ingestion is a process in which the organism getting their food through the mouth, getting their food from inside, from surrounding to the inside the body by the food by the माउथ के साथ क्या करेगा, वो जो अपना फूड होगा ना वो अपनी बॉडी के ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर लेगा. और इसको फूड को कैप्चर करने के लिए हर एक जो एनिमल होता है उसके पास ज़रूरी नहीं है कि माउथ हो, ठीक है, वो अपने अलग अलग ऑर्गन्स भी यूज़ करता है. जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि लाइक हम एग्जाम्पल में अमीबा की बात करें, ठीक है, तो अमीबा क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ अ सूडोपोडिया देयर प्लाज्मा देयर मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस, उस मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस को यूज़ करता है, सूडोपोडिया को यूज़ करता है फूड को कैप्चर करने के लिए. बट अगर व्हेन वी टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स किसका यूज़ करते हैं, हम माउथ का यूज़ करते हैं फूड को कैप्चर करने के लिए. द नेक्स्ट वन इज़ द डाइजेशन. बच्चे इन द डाइजेशन द complex food material, or we can say that the insoluble food ingredient converted into the soluble form of a food which is easily digestible. Okay, एंड द नेक्स्ट वन इज़ द एब्जॉर्प्शन. बेसिकली एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो आपका डाइजेस्टेड फूड होगा. बच्चे रिमेंबर वन थिंग, जो आपका डाइजेशन वाला प्रोसेस है ना, it can be further separated into the two types. The first one is the physical digestion and the second is the chemical digestion. Physical digestion में आपके teeth होंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे, फूड जो आपने माउथ के थ्रू सबसे पहले तो हमने इनटेक किया होगा जिसको, ठीक है, टीथ्स क्या करेंगे, इसको है ना क्रश करने में हेल्प करेंगे, ग्राइंड करने में हेल्प करेंगे. और उसके बाद केमिकल में क्या होता है कि एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करेंगे उसी फूड के ऊपर ताकि वो इजीली से डाइजेस्ट हो पाए. और इन द केस ऑफ बच्चे एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड आपका फूड होता है, ठीक है,
तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो उसको डाइजेस्टेड फूड को थ्रू द ब्लड, जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा ब्लड के थ्रू सारी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, ब्लड के थ्रू, क्योंकि उसने हर सेल को ट्रांसपोर्ट करना है जो डाइजेस्टेड फूड होगा आपका। और इन द केस ऑफ एसिमिलेशन, बच्चे एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड आपका ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो फूड आपका डाइजेस्टेड फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा था ना, वो ट्रांसपोर्टेड फूड जो अलग अलग सेल तक पहुंचा है, ठीक है, उसमें कि एसिमिलेशन में क्या होगा, वो जो फूड है वो किस में कन्वर्ट होगा, डाइजेस्टेड फूड जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ओके। तो वो आपका जो फूड होगा वो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, कन्वर्ट होगा प्रोटोप्लाज्मिक फॉर्म में। और उसी प्रोटोप्लाज्मिक फॉर्म से क्या होगा कि जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी ऑब्टेन करेगा, ठीक है, टू परफॉर्मिंग देयर डिफरेंट एक्टिविटीज़ और फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द रिप्रोडक्शन, फॉर द हीलमेंट एंड फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज्ड टिश्यू। तो बेसिकली ये होगा। उसके बाद इजेशन तो आपको सबको पता है, इजेशन में क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। इसके लिए कुछ हो सकता है कि स्पेसिफिक मैकेनिज्म हो, कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम हो और एक्सक्रीटरी टिश्यू प्रेजेंट हो बॉडी में। तो ये बेसिक जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स में सेम होते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो कि हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये अमीबा के बारे में आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। अंदर बच्चे लेफ्ट हैंड साइड येलो पिक्चर में आपको अमीबा की फिगर दिख रही होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अमीबा की कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है, इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल नहीं होती, जो सेल मेम्ब्रेन होती है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नेचर की होती है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल नेचर की होने की वजह से क्या करता है, इसकी मेम्ब्रेन जहाँ पे भी इसको फूड पार्टिकल दिखता है, इट स्टार्ट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स दम, उसकी तरफ वो जो आपका फूड पार्टिकल होगा उस फूड पार्टिकल की तरफ ये मेम्ब्रेन अपनी एक्सटेंड करके उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। और इसकी बेसिकली अमीबा की बॉडी में क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है, एक आपके पास फूड वैक्यूल होता है, ठीक है, और एक लाइजोसोम्स प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन द न्यूट्रिशन इन द अमीबा, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ किए है ना, तो उसमें सबसे पहले देखो कि क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले इंजेक्शन वाला प्रोसेस होगा आपका, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। तो इंजेक्शन में क्या होगा कि अगर सपोज करो कि अमीबा के पास, ठीक है, साइड में कहीं पे भी उसको पता चलता है, डिटेक्ट कर लेता है कि फूड पार्टिकल कोई है, तो उसने क्या करना है, जो अपने सूडोपोडिया लाइक प्रोजेक्शंस हैं उस फूड पार्टिकल की तरफ क्या करना है, उसको मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। करने के बाद वो क्या करेगा, उसके अराउंड एक कप शेप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। वो कप शेप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद उसको जो फूड पार्टिकल होगा ना अच्छे से सराउंड करके उसको इनगल्फ कर लेगा, अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा, ठीक है। और जब उस फूड पार्टिकल को वो अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा ना, तो उसके बाद बॉडी के अंदर आने के बाद जो फूड पार्टिकल होगा वो एक वेसिकल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, वेसिकल फॉर्म में आ जाएगा। और फूड को जब वो अंदर लेता है अमीबा, ठीक है, इनटेक करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, PHAGOCYTOSIS, फेगोसाइटोसिस, ओके। तो बच्चों जो मैंने आपको है ना बताया कि जब वो फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा अपनी बॉडी के, तो उसके बाद क्या करेगा, वो एक वेसिकल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, और फूड वैक्यूल की फॉर्म में वो स्टोर कर लेगा। उसके बाद क्या करना है कि अमीबा की बॉडी के अंदर जितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, ठीक है, लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेली में, वो हेल्प करेंगे उसकी अच्छी सी डाइजेशन होने में। देन बाकी के जो प्रोसेस हैं असिमिलेशन वगैरह, ठीक है, वो आपकी फिर इसकी बॉडी में वो सेम चलेंगे। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये क्या कर देगा, उनको अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा। बेसिक इसमें बहुत ज़्यादा सारे प्रोसेस जो है वो आपके सिंपल चलेंगे, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट एंड देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगी,
और जो उसने फूड एसिमिलेट किया, ठीक है, उसको फिर वो ग्रोथ पर्पसेस के लिए यूज़ करेगा। ये आपका बेसिक जो क्राइटेरिया रहेगा सब में वो सेम रहेगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ठीक है, एंड देन इजेशन। तो ये तो आपका था न्यूट्रिशन इन अमीबा। एंड द नेक्स्ट वन इज द द नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स। तो बच्चे सबसे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो इंजेशन तो हम कर लेंगे, मैंने आपको बोला माउथ के थ्रू हम फूड को इंजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और आफ्टर जब हमने फूड को इंजेस्ट कर लिया बच्चे, रिमेंबर डैट फूड इज़ द कम्प्लेक्स टाइप, ठीक है। जो फूड हम ईट करते हैं वो कम्प्लेक्स टाइप का होगा, क्योंकि आपका उसमें कार्बोहाइड्रेट भी आता है, प्रोटीन भी आता है, विटामिन, मिनरल्स, सॉल्ट्स आना, कुछ आयंस वगैरह होंगे जो बॉडी के लिए एसेंशियल है, ये सभी होगा फूड कंपोनेंट में, ओके। तो आफ्टर डैट सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन। तो डाइजेशन हमारी बॉडी जो होती है, ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो इसकी कुछ अलग अलग सेक्रीशंस होती हैं जो डाइजेशन वाले प्रोसेस में हेल्प करती हैं। तो बेसिकली जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इन चेक इन द फर्स्ट पॉइंट आई एम राइटिंग हियर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम consists of the two parts. The first one is the alimentary canal and the second is its associated glands. Basically, so हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब होगी, ठीक है, जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। सी इन द पिक्चर where the labeling is there, mouth and the anus. Mouth is the entry point and the anus is the exit point, जिसको आप टॉयलेट होल भी बोलते हो, एनस को, ठीक है। यस बच्चे, तो हम एलिमेंट्री के पार्ट के अगर बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट होते हैं, द फर्स्ट इज द माउथ एंड द नेक्स्ट इज द ओसोफेगस। ओसोफेगस इज एक्चुअली द रिप्रेजेंट द फूड पाइप, ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। बच्चे ग्लैंड्स, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया ना, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मीन्स इसमें सारे वो वाले ऑर्गन्स आएंगे आपकी बॉडी के जो कुछ ना कुछ सेक्रीट करते हैं, कुछ ना कुछ एंजाइम्स, कुछ ना कुछ फ्लूइड सेक्रीट करते हैं जो फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है, ओके। द फर्स्ट वन इज द सलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, ठीक है, एंड देन द पैनक्रियाज। बच्चे सलिवरी ग्लैंड्स क्या करता है, ये ना टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ये वाले जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और ये सलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सेक्रीट क्या करेंगे, सलाइवा सेक्रीट्स करते हैं, ठीक है। और जो लिवर होता है ये आपका बाइल जूस सेक्रीट करता है एंड द जो पैनक्रियाज होता है वो आपका, ये आपका ट्रिप्सिन, ठीक है, ऐसे करके कुछ और लाइपेज वगैरह, ये ऐसे एंजाइम सेक्रीट करता है जो फर्दर डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज बच्चे, डाइजेशन इन्वॉल्व्स द, जैसे मैंने आपको बताया, फिजिकल प्रोसेसेस एंड द केमिकल प्रोसेसेस। आफ्टर द टेकिंग ऑफ फूड, जब फूड जो होगा आपका, ठीक है, वो इंजेस्ट कर लोगे आप माउथ के थ्रू, तो उसके बाद क्या होनी होती है, जब फूड ने ओसोफेगस के थ्रू पास करेगा, ठीक है, तो उसके बाद जब फूड ओसोफेगस के थ्रू पास करेगा तो फूड की ना जो आपका ओसोफेगस वाली पाइप होगी, जो आपकी फूड पाइप होगी, उसमें कुछ आपके पास मूवमेंट होगा, ठीक है। जहाँ से फूड जो होगा पास होगा वहाँ पे क्या करेगा, जो आपकी फूड पाइप होगी, इट स्टार्ट एक्सपेंडिंग, और जिस एरिया से फूड पास कर चुका है ऑलरेडी, इट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका जो फूड पाइप है ना, फूड पाइप में साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऐसी मूवमेंट जो है वो होती जाएगी। तो दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर नोन एज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ओके। Yes बच्चे, now there are the secretions of the body that help in the digestion of a food. Basically हमने यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, सलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलिवरी ग्लैंड्स क्या secrete करता है, सलाइवा में भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, that enzyme is the salivary amylase which is present in the mouth that help in the partial digestion of the carbohydrate component of the food. And the next I am writing here the hydrochloric acid, enzyme, pepsin and the mucus. Basically all these things are present in the stomach. Basically pepsin help in the digestion of protein and the mucus help in the softening of food, and it also
प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द HCl सिक्रीशन। आपको पता है कि HCl जो होता है वो क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो आपने ये भी सुना होगा समटाइम कि कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी स्टमक में क्या हो गया, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। वो एसिडिटी बर्न्स क्यों होते हैं, क्योंकि HCl की जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन होती है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो HCl के बेसिक हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस होंगे, HCl क्या करता है, एक तो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है स्टमक में, ताकि जो प्रोटीन कंपोनेंट है फूड का उसका इजीली डाइजेशन हो सके, और जो एंजाइम पेप्सिन उस पर वर्क कर रहा है, ठीक है, उस पर एक्ट कर रहा है, तो उसकी एक्टिविटी प्रॉपर होती रहे। और नेक्स्ट क्या है, जो जितने भी बैक्टीरिया हैं आपके, ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो अच्छे से किल हो जाएं, जो एंटर हुए हैं जब आपने फूड को इंजेस्ट किया था तब हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया वगैरह एंटर करते हैं, तो उन सभी बैक्टीरिया को ये स्टमक में क्या कर देता है, किल कर देता है। ओके बच्चे, ये सारी सिक्रीशंस आपको, ये क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपका 1 और 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। रिगार्डिंग ये पूछ लेंगे कि पेप्सिन का क्या फंक्शन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है स्टमक में, म्यूकस का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से रिमाइंड करोगे। द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ द स्फिंक्टर मसल्स। बच्चे स्फिंक्टर मसल्स कौन से होते हैं, जहाँ पे आपकी जो स्टमक है ना, सी शेप जो आपकी स्टमक है, जे शेप है ना, जहाँ पे वो ख़त्म होती है और वहाँ पे क्या करता है, जो आपकी इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है वो स्टार्ट होता है। तो ये स्फिंक्टर मसल्स क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक एंड देन फूड कम्स इनटू द इंटेस्टाइनल पार्ट। बच्चे बेसिकली आपको ना ये बात रिमाइंड रखनी है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये एलिमेंट्री कैनाल का आपका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट होगा। एंड सेक्रीशन ऑफ द लिवर में मैंने आपको बताया था, लिवर क्या सेक्रीट करता है, बाइल जूस सेक्रीट करता है। और बाइल जूस क्या होता है, इट्स अ ग्रीनिश येलोइश लिक्विड secreted by the liver and that stored by the gallbladder. Bile is the alkaline and it contains the salt that helps in the emulsification of the fat. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मीन्स फैट के जो लार्ज आपके पास ग्लोब्यूल होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको सिंपलर वन में और स्मॉल कंपोनेंट स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज द सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाज। बच्चे पैनक्रियाज आपकी बॉडी में एक ऐसा लीफ लाइक ऑर्गन होता है, ठीक है, जो बिल्कुल स्टमक के पैरेलल प्रेजेंट होता है। सी इन द डायग्राम, जो आप आपके पास यहाँ पे स्टमक है और बिल्कुल उसके पैरेलल, ठीक है, बैक साइड पे वो थोड़ा सा पिक्चर में कम क्लियर हो रहा है, ठीक है, बट लेबलिंग इज देयर द पैनक्रियाज। ये है ना पैरेलल प्रेजेंट होता है आपका स्टमक के। तो ये क्या सेक्रीट करता है, पैनक्रियाज होता है पैनक्रिएटिक अमाइलेज। बच्चे जहाँ पे अमाइलेज आ गया ना तो आपको कंफर्म होना चाहिए किसकी डाइजेशन में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प करेगा। And the next is the trypsin. Trypsin help in the digestion of the protein component of a food. And then next is the lipase. Lipase help in the digestion of a fat. बच्चे उसके बाद क्या आ जाता है, इंटेस्टाइनल जूसेस आ जाएंगे। इंटेस्टाइनल जूसेस जो होंगे ये आपका क्या करेंगे, इंटेस्टाइनल जूसेस जो होंगे आपके ये हेल्प करेंगे बेसिकली फॉर द एब्जॉर्प्शन पर्पस, ठीक है। फूड जब डाइजेस्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज एंजाइम्स, तो ये क्या करेंगे, आपके फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। और आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, वो इस वे से डिज़ाइन होगी, उसमें ना कुछ विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे जो क्या करेंगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे। सरफेस एरिया किस लिए इंक्रीज करना है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजरली आपका एब्जॉर्प्शन वाला जो पार्ट है वो अकर होगा, ठीक है, ताकि वो जो आपका डाइजेस्टेड फूड है मैक्सिमाइजली स्टोर हो पाए, एब्जॉर्ब हो पाए बॉडी में, और बॉडी इसको देन फर्दर इजीली एसिमिलेट कर पाए। आफ्टर डेट बच्चे इजेशन का प्रोसेस होना है आपका, ठीक है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच जाएगा वो एनल स्फिंक्टर डिसाइड करेगा कि कितना फूड मटेरियल जो है वेस्ट मटेरियल वो एग्जिट होगा आपकी बॉडी में से, ठीक है। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा वो आपका एग्जिट कर जाएगा बॉडी में से थ्रू द बाय द एनस, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपका बेसिक सारा था।
तो आई होप आपको अच्छे से सारे पॉइंट्स जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। बट बेसिक रोल इन्हीं प्रोसेसेस का है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड द एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है तो देन चैट बॉक्स इज योर्स, कमेंट देयर एंड आस्क योर क्वेश्चन आंसर्स। ओके बच्चे, एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ अपेंडिक्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ अपेंडिक्स? अपेंडिक्स बेसिकली क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का इट इज़ अ जंक्शन पॉइंट, एक जंक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का, उस जंक्शन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। ओके तो बच्चे आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन इन बोथ एनिमल्स एंड द प्लांट्स हम दोनों में डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स में कैसे होती है रेस्पिरेशन और प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। सो आई होप यू विल लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड एन्जॉय द लेक्चर। एंड बच्चे रिमेंबर वन थिंग, दिस लेक्चर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको अच्छे से सुनना। ठीक है, और सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लेना। सो थैंक यू।